त्रिपुरा में हमारे सब साथी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आने वाले चुनावों की तैयारी के बारे में चर्चा करने की। किस विषय में आप मुद्दे में आलोचना होगा जी, किस किस मुद्दे में आलोचना होगा मीटिंग में? सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने के लिए सभी। এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। Listen to ABC News AGT Live। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि त्रिपुरा को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने, एआईसीसी ने बहुत गंभीर हमारे सामने मुद्दे आए हैं, उन पर गंभीरता से विचार विमर्श कर उस पर जल्दी निर्णय लिया जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे वर्किंग कमेटी माननीय सदस्य অভিনয় জি, ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী ক্যাবিনেট মিনিস্টার পীযূষ সিং দেওজি, ওনাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরোধী সিনহা, প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নারায়ণ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লামিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট তাপস দে। আজকে ওনারা অভিনাশ পান্ডেজি এবং পীযূষ সিং দেওজি আজকে অ্যাড্রেস করবেন। আমি প্রথমে পীযূষ সিং দেওজিকে This shows clearly how the BJP has lost the plot nationally. They can't control major countries on the border. We have any number of infiltrations. Drone attacks are taking place almost every other day. Every week we hear about drone attacks on our establishments. And here two parties belonging to the same national party or associated with the same national party are not able to get along together to the extent that you have to put a barrier between the two states. You are not able to travel from one state to another state in this country. If this is what the capacity of the Bharatiya Janata Party is, then it is exactly why Rahulji again and again and again is bringing this to the notice of the citizens of the India. It is time to change them. It is time to save the country. And similarly, it is time to save Tripura. Sir, in Tripura today we have seen Trinamool is trying to focus in Tripura, and they have expressed to form an alliance with the Congress and all like-minded party to fight against the BJP. How do you see into the prospect? What is the prospect? Like our my senior just told you that these are issues taken up at the highest level and the state leadership. The state leadership has to take a call on that, and we are certainly open to forming a government which will work for the interest of the people of Tripura. Thank you. To come together against BJP, specifically category about Congress and CPM, the question was कांग्रेस का पोजीशन बहुत स्पष्ट है। बीजेपी को हराने के लिए लाइक माइंडेड जितने भी लोग उन सबको साथ में आने के लिए हम चल देंगे। होता यह है कि आज बीजेपी का पूरे देश के अंदर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोगों को बीजेपी का माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के किए गए वादों का और देश में जिस प्रकार की अराजकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो लोगों की निजी जासूसी करने का मामला हो, चाहे जिस प्रकार से कोरोना को पूरे देश में एक प्रकार से नजरअंदाज करके गंभीरता से नहीं ली गई, उसके कारण जो जान की हानि भी नुकसान हुआ। इन सभी मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो आज पार्लियामेंट में भी जितने भी विपक्षी दल वो सब एकजुट होकर इन सरकार के कारनामों के बारे में जनता के सामने चर्चा करने के उनको आह्वान कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर त्रिपुरा में भी जैसा कि माननीय सिंहदेव जी ने कहा कि 2014
2023 की सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत बड़ी भूमिका होगी यहाँ पर सरकार का हिस्सा रहने की और उसको स्थापन करने की। और अभी जैसे आपने कहा कि तृणमूल ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी भी समवैचारिक पार्टियां हैं जो साथ में आना चाहती हैं, हम सब लोगों को साथ में संभावना पूर्ण रूप से खुली है। लेकिन इस विषय में हमारा जो स्थानीय यूनिट होता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका रोल सबसे अहम होता है। यहाँ पर वो लोग इसके बारे में चर्चा करके जिस प्रकार से आगे कार्रवाई करनी है उसमें हम बढ़ेंगे। बट मौलिक रूप से in principle, all the other parties who are like-minded to counter BJP and throw them out of power from Tripura. Definitely, they are welcome and they are going to join. Already at the national level, we have seen that Mamata Banerjee had visited Rahul Gandhi and Sonia Ji. They have already met. I spoke with our president, Congress president. Say it depends. The alliance depends on the center, but he has his own. Congress party is a 135 years old party. It's a national party. And the decisions are normally being taken at the all India level in principle, whether it is good or not. But I am telling अगरतला में त्रिपुरा में हम लोगों को जानकारी मिली कि राजनीतिक दल के लोगों के काफिले पे हमला किया गया और ये इस बात को और पुख्ता करता है जो हमने आज 300-400 लगभग सीनियर लीडर पूरे त्रिपुरा से आए थे, उनसे बात करने के बाद 2023 के चुनाव में वर्तमान सरकार दोबारा नहीं आने वाली। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी, ये तय दिख रहा है। विकल्प के रूप में न वामपंथ को न भाजपा को सफलता मिलेगी और इस बात का प्रमाण ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि सत्ता में रहते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में असफल रही तो जब आम चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार त्रिपुरा के मतदाता निश्चित रूप से जबरदस्त करेंगे। और उसके कारण है, जैसा अभी सर ने भी बताया, आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और किसने जारी किया? मेरे ख्याल से मोदी जी और अमित शाह जी ने त्रिपुरा के लिए देश के वर्तमान सरकार के प्रमुखतम 2 लीडर ये त्रिपुरा आते हैं। त्रिपुरा के नागरिकों को, हमारे भोले भाले यहाँ के नागरिकों को, मतदाताओं को विश्वास में लेते हैं, एक मिशन डॉक्यूमेंट जारी करते हैं और 299 में से अगर एक भी बिंदु क्रियान्वित नहीं होता है 2.5 साल 3 साल के अंदर, यही कारण है कि ये सरकार दोबारा नहीं आने वाली। मनरेगा के लिए इन्होंने शायद 300 या 340 रुपए की बात कही थी। त्रिपुरा के श्रमिकों को 190-192 रुपए मिल रहे हैं। 50,000 रोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष देने की बात इनने कही थी। आज रोजगार की संभावनाएं कहीं नहीं दिख रही है। इन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन की बात कही थी। आज दूरस्थ आदिवासी अंचलों में जाके देखिए, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न राशन की समुचित व्यवस्थाएं हैं, अपितु लोगों की संपत्ति। त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय पीयूष जी, छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तो विशेष रूप से एआईसीसी के ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ हमारे साथ आए, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट गोपाल राय जी,
आदरणीय विजय सिन्हा जी, उपस्थित कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी एवं आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेशानुसार मैं और मेरे साथी आदरणीय पीएस सिंहदेव जी, हम लोग त्रिपुरा में संगठन के कार्यकलाप और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को किस प्रकार से हमारा त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी और हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी जितनी भी इकाइयां सेल्स डिपार्टमेंट की, उनको आने वाले वर्तमान और बहुत जल्द ही प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं 2023 और उससे पहले पंचायत और लोकल बॉडीज की, तो उस संबंध में संगठन के विषय पर यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ और सभी कांग्रेस पार्टी की इकाइयों के साथ चर्चा कर उनके सुझाव अनुसार आने वाली चुनौती के लिए कांग्रेस संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस विषय पर आज दिन तक कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, जिससे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, फॉर्मर एमएलए जो उपस्थित रहे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, हमारे अन्य सभी सेल्स डिपार्टमेंट सबके साथ चर्चा हुई। मुझे खुशी है और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ भाई पीयूष जी का कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ की गतिविधियों को उन्होंने संक्षिप्त में हमारे सामने रखा और आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में न सिर्फ चुनाव में लेकिन एक सशक्त विपक्षी दल की भूमिका और मजबूती के साथ निभाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक चीज में आज दिन भर के क्रियाकलापों और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं, सिन्हा जी, गोपाल जी, पीयूष जी, इन सभी से चर्चा करने के बाद एक चीज को मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि 2023 में आज की जो भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि हर विषयों में नाकाम, असफल रही है, जिन्होंने पिछले 3 वर्ष के अपने कार्यकाल में 299 में से एक भी वादों को पूरा नहीं किया और ना ही यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की राहत देने में कामयाब। इस विषय में विस्तार से आदरणीय पीएस सिंहदेव जी आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी एकजुटता के साथ एकजुट होकर और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत जल्द ही इससे संबंधित जो भी एआईसीसी की ओर से कदम उठाने हैं, इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन का गठन, उसकी घोषणा और इस विषय में जो भी क्रियाकलाप है उनको बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पीएस सिंहदेव जी से कि वे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के जो चुनाव थे काउंसिल, उसमें भी उनकी उपस्थिति रही है और
get our